مرتد ہو گئے تھے، وہ پیسوں کے لالچ میں اپنے ایمان و ضمیر کا کیا کرتے تھے؟ سودا کرتے تھے۔ تو پھر سوال یہاں بھی پیدا ہوگا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سالہ دور نبوت میں آخر وہ کون سا کارنامہ انجام دیا؟ اگر ان کے مرتے ہی ان کی پیدا کی ہوئی ٹیم، بنائی ہوئی جماعت حکومت و سیاست پر اس طرح سے لڑ پڑی جس طرح سے دنیا پرست آج کے زمانے میں لڑتے ہیں، یا کہہ دیجئے جس طرح کتے مردہ لاش پر کیا پڑتے ہیں؟ جھپٹ پڑتے ہیں، تو آخر کوئی کارنامہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا باقی نہیں رہ جائے گا۔ میرے بھائیوں اور دوستو، میں نے آپ سے کہا کہ صحابہ کرام کے بارے میں قرآن کی یہ صراحت بالعموم ہے، اور معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان صحابہ میں سرخیل صحابہ میں سے ہیں جنہوں نے اسلام کے لیے کیا کیا ہے؟ قربانیاں دی ہیں، اور اسلام کی اتنے بڑے پیمانے پر جنہوں نے کیا کری ہے؟ خدمت کی ہے۔ اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابہ کے بارے میں بالعموم کیا کہا ہے؟ کہا اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوهم غرضا من بعدی فمن احبهم فبحبی احبهم۔ اے لوگو، میرے چلے جانے کے بعد، دنیا سے چلے جانے کے بعد میرے صحابہ کو ہدف ملامت اور تنقید کا نشانہ مت بنانا، اس لیے کہ صحابہ سے محبت مجھ سے محبت ہوگی، اور صحابہ سے دشمنی مجھ سے کیا ہوگی؟ دشمنی ہوگی۔ یاد رکھو مسلمانوں، خوش نصیبی ان مسلمانوں کی ہے جو صحابہ سے محبت واقعی معنی میں کرتے ہیں، جو چند کے محبت کے آڑ میں بقیہ کو مرتد نہیں قرار دیتے، بلکہ سب سے محبت اپنے ایمان کا اور اپنے عقیدے کا حصہ مانتے ہیں۔ میرے بھائیوں اور دوستو، اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک حدیث کے اندر، واللہ لو انفق احد مثل احد ذهب ما بلغ مد احدهم ولا نصیفہ۔ اللہ کی قسم، آج کے دور میں اگر کوئی ولی اللہ، بہت بڑا ولی اللہ، کتنے بڑے درجے کا کیوں نہ ولی ہو جائے، اللہ کا یعنی اللہ کا دوست، اپنے عمل اور تقوی کی بنیاد پر، اپنے قربانیوں کے صلے کی بنیاد پر، ما بلغ مد احدهم ولا نصیفہ، تو ایک سیر جو انہوں نے اللہ کے راستے میں خرچہ کیا ہے، اگر احد پہاڑ کے برابر آج کے دور کا کوئی انسان اللہ کے راستے میں خیرات کرتا ہے تو ان کے مقام اور مرتبے کو نہیں پا سکتا۔ جب عام صحابی کی یہ بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں تو میرے بھائیو اور دوستو، معاویہ کا پھر کیا مقام ہوگا، اور ان صحابہ کا کیا مقام ہوگا، ابو بکر اور عمر اور عثمان کا، جن کے بارے میں تان یوں کھینچا جاتا ہے کہ اگر انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے حکومت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حکومت اگر علی سے نہ چھینی ہوتی، غصب نہ کی ہوتی، تو حکومت کہاں جاتی؟ سادات، خاندان سادات میں جاتی، فاطمہ کے اولاد میں جاتی، اور کربلا کا واقعہ پیش نہ آتا۔ میرے بھائیو اور دوستو، میں یہ کہتا ہوں کہ زیادہ سے زیادہ اگر کسی شخص کے معدے میں کوئی بات نہیں ہضم ہو پاتی ہے تو معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے اتنا کہہ لے کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر اپنے بعد اپنے بیٹے یزید کو خلیفہ نامزد نہ کرتے، کسی اور کو کرتے، تو شاید امت اسلامیہ کا حال، جبکہ اگر مگر والا مسئلہ بھی دین میں یہ مناسب کی بات نہیں ہے، زیادہ سے زیادہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ ایک سیاسی بھول ہو سکتی ہے، لیکن میرے بھائی اور دوستو، اگر انہوں نے اپنے بعد اپنے بیٹے یزید کو ولی عہد نامزد کر دیا تو اس کی بنیاد پر اتنے بھیانک کوئسچن کہ ایمان اور یقین، مغیرہ ابن شعبہ کے ایمان اور یقین، بڑے بڑے صحابہ کو خروج اسلام کا سرٹیفکیٹ، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ میرے بھائیو اور دوستو، ولی عہدی کے مسئلے میں بھی میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ولی عہدی یہ کوئی شرعی طور سے غلط مسئلہ نہیں ہے۔ اسلام میں کوئی ایک ادنا سی نص کوئی شخص نہیں دکھا سکتا کہ اپنے بعد بیٹا کو باپ ولی عہد نامزد نہیں کر سکتا ہے۔ آپ اگر غور کریں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے گئے، آپ نے امت اسلام کو اس حالت میں چھوڑا، بلکہ اشارات بھی اس طرح سے دے دیے کہ امت اسلام ابو بکر کے ہاتھوں پر کیا ہو جائے گی؟ اکٹھی ہو جائے گی۔ لیکن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت کو دیکھیے، انہوں نے باقاعدہ اپنے بعد خلیفہ نامزد کر گیا، 6 آدمیوں کو کیا کر گئے؟ ٹیم بنا کر کے گئے، اور بنانے سے پہلے یہ بات بھی کہہ کر کے گئے کہ آج اگر ابو عبیدہ ابن الجراح زندہ ہوتے تو میں سنت فاروقی پر عمل کرتے ہوئے، اس لیے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باقاعدہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے بعد کیا کیا تھا؟
खलीफा नामजद किया था और कहा था कि अगर अल्लाह पूछेगा मुझसे क़यामत के दिन कि उम्मत इस्लाम की बागडोर तुमने किसके हाथ सौंपी थी, तो मैं अल्लाह से कहूंगा कि इस धरती पर तुझसे जो सबसे ज्यादा डरने वाला था, तेरे दीन की खिदमत की उम्मीद जिससे मुझे सबसे ज्यादा थी, उसके हाथ मैंने उम्मत इस्लाम की बागडोर क्या की थी, सौंपी थी। मेरे भाई और दोस्तों, इस एतबार से मैंने कहा कि अगर तारीख़ जमल और सिफ़ीन आपके सामने हो जाए, जहां पर एक दो नहीं 80,000 सहाबा उनको मारने वाले सहीयूनी ताकत जो आज गज़ा और मुस्लिम बस्तियों पर पावरफुल वजनी बम गिरा करके खुशियां महसूस कर रहे हैं, अल्लाह उन्हें समझ दे, अल्लाह उन्हें मुसलमान बना दे, और अगर वो इस्लाम के लिए नहीं तैयार होते तो अल्लाह उन पर ऐसा कहर डाल दे कि वो दुनिया के लिए निशान इबरत बन जाए। मेरे भाइयों और दोस्तों, मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूं कि हजरत अमीर मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हु ने देखा था कि जमल और सिफ़ीन में इस्लाम की वो चमकती हुई तलवारें जो इस्लाम की खिदमत के लिए दुश्मनाने दीन और इस्लाम का किला फतेह कर रही थी, आपसी इख्तलाफात की बुनियाद पर बेनियाम हो गई थी। लेकिन हजरत हसन रजी अल्लाह ताला अन्हु की समझदारी के बाद उम्मत इस्लाम की तलवार एक झंडे के नीचे इकट्ठा हो गई तो खैर ही खैर जाहिर हुआ, खुशियां ही खुशियां आई, बरकत ही बरकत नाजिल हुआ और इस्लाम चहार दागे आलम में क्या हो गया, फैल गया। क्या यह नहीं कहा जा सकता कि अमीर मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हु जिस तरह अपने आप के बारे में कहा करते थे, जब किसी ने कहा कि मुआविया तुम्हारे ऊपर अली लश्कर कशी करने वाले हैं और याद रखो तुम मुआविया अली के मुकाबले में टिक नहीं सकते हो ईमान में, तो उन्होंने बरमला कहा था कि अली मुझसे बेहतर हैं, अली हर एतबार से मुझसे बेहतर हैं और मैं अपने आप को अली के मद्दे मुकाबिल खिलाफत का दावेदार नहीं समझता, लेकिन खूने उस्मान का जो मसला है सियासी तौर पर अली से चूक हो रही है और मैं उस्मान का करीबी हूं, मेरे बहनोई हैं, मैं उनकी हुकूमत का इतना बड़ा ताकतवर इंसान था, इस्लाम की तरफ से मुसलमानों की तरफ से उन कातिले उस्मान से बदला लेना मेरा फर्ज बनता है। एक सियासी मसला था। उन्होंने कहा, सोचा क्या यह मुमकिन नहीं कि उम्मत इस्लाम फिर से इख्तलाफात का क्या हो जाए, शिकार हो जाए। मेरे भाई और दोस्तों, एक बात और मैं बताना चाहता हूं, हमारे यहां आमतौर से देखा जाता है कि फला इंसान बहुत मुत्तकी है। मुत्तकवा और चीज है और सियादत व क़ियादत, जहांबानी और जहांगीरी क्या नाम है, अलग चीज है। यजीद की सीरत के मुतालिक जो सही रिवायात है, दोस्तों ने तो पता नहीं क्या क्या रिवायतें हकायतें बयान कर रखी हैं। आज का इंसान जो बैठ करके सिगरेट पीता है, सिगरेट नहीं मौका आ जाए तो शराब पीता है, साल भर नमाज नहीं पढ़ता, ज़कात का वो पाबंद नहीं, चेहरा मोहरा उसका इस्लामी नहीं, सीना पीट पीट करके उन अजिल्ला सहाबा को बुरा भला कहता है जिनके पांव के धूल गर्द को भी वो पा नहीं सकता। मेरे भाइयों और दोस्तों, मैं आपसे ये अर्ज करना चाहता हूं कि हजरत अमीर मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने बेटे यजीद को इस बुनियाद पर खलीफा नामजद नहीं किया था कि यजीद बमुकाबिल हुसैन ज्यादा दीनदार है। हो सकता है उन्होंने ये सोचा हो कि मेरा बेटा होने के नाते उम्मत इस्लाम शायद इस बात पर क्या हो जाए, इकट्ठी हो जाए, वरना हुसैन के मद्दे मुकाबिल अब्दुल्लाह इब्ने उमर, अब्दुल्लाह इब्ने जुबैर और दीगर बड़े बड़े सहाबा थे जो हुसैन से भी ज्यादा हुकूमत और खिलाफत के हकदार क्या थे, मौजूद थे। अगर तकवा की बुनियाद पर सरदारी और रहबरी दी जाए तो ये हक जो है हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का नहीं बनेगा। मेरे भाइयों और दोस्तों, वाक़या करबला भी जो पेश आया वो एक हादसाती वाक़या है, आलमी इस्लाम के लिए एक नासूर है, हर मुसलमान उससे तकलीफ महसूस करता है, लेकिन उसकी बुनियाद पर चाहे अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में ज़ुबान खोली जाए या मुआविया के बेटे यजीद के बारे में कुफ्र तक जो है जुमले और या फतवे सादिर किए जाएं, इस्लाम इस तरह की तालीम हमें नहीं देता। इस्लाम ने ग़ज़वे सिफ़ीन और जमल दोनों की लड़ाइयों को सहाबा किराम ने अपनी आंखों से देखा था। वाक़या करबला भी जब पेश आया, जहां नवासे रसूल की शहादत हुई, वो वाक़या भी पेश आया तो सहाबा किराम एक दो नहीं, जम्मे गफीर उनकी मौजूद थी और उन्होंने सब्र के साथ इस वाक़े को क्या कर लिया, बर्दाश्त कर लिया। उन्होंने कोई एक रिवायत बताए कि सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन ने यजीद की बैत से अपने हाथ को क्या कर लिया हो, खींच लिया हो।
अगर यजीद, जैसा कि आज ये दोस्त बताते हैं कि खुला शराब पीता था, खुला ज़िनाकार था और खुला जो क्या क्या मसाइल थे जो आज कहा जाता है, तो मेरे भाइयों और दोस्तों शुरू ही से सहाबे किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन उसकी बैत के लिए तैयार नहीं होते। यजीद हम दिफा के लिए नहीं, कोई वकील सफाई नहीं बैठे हैं जो बनु उमैया या मुआविया या फलां के खिलाफ हम बोलने वालों के खिलाफ हम वकील बन जाएं। लेकिन मेरे भाइयों और दोस्तों सच्चाई यह है कि तारीख के सफ़ात के जो हवाले पेश किए जाते हैं उन्हीं तारीख के सफ़ात में ऐसे हवाले भी मौजूद हैं जिससे यह पता चलता है कि यजीद की परवरिश दीनी नहज और दीनी किताबों पर हुई थी। वो इंतहाई समझदार था, फकीह था और एक बादशाह ज़्यादा था। उसके अंदर खेल कूद से शगफ जरूर थी, लेकिन इस दर्जा गिरा हुआ कि उसको काफिर कहा जाए, उम्मत इस्लाम के लिए बात मुनासिब नहीं है। मेरे भाइयों और दोस्तों हमारे लिए बेहतर यही है कि हम अपनी ज़बानों को क्या करें, महफूज करें। और ये वाक़यात जो आलम इस्लाम में पेश आए वो सारी शख्सियतें अल्लाह के जनाब में अब जा करके मौजूद हैं, पहुंच चुकी हैं। अल्लाह ने उनके बारे में फैसला भी कर दिया होगा। हमारे लिए बेहतर यही है कि जिस तरह सहाबे किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन ने उन तमाम दुखद घड़ियों को सब्र के साथ बर्दाश्त कर लिया और एक कज़ा और क़द्र का फैसला माना, इसलिए कि ज़माने रसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह बात फरमाई थी। एक मर्तबा उम्मे सुलैम जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, गमगीन थे, आपकी आंखें अश्कबार थीं, आपकी दाढ़ी आंसुओं से तर थी। कहा, ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको किसने रुलाया? कहा, मेरा ये नवासा हुसैन, अपनों के हाथों क्या होगा? इसके कत्ल करने वाले यूरोप और अमेरिका के यहूदी नहीं, अपने लोग इसको क्या कर देंगे? कत्ल कर देंगे। गोया कत्ल करने वाले बहरहाल चाहे जितना दर्जा आप कह लीजिए फासिक थे, फाजिर थे, लेकिन मुसलमान ईमान का हिस्सा उनसे छीनना आपके लिए मुमकिन। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस बताती है। मेरे भाई और दोस्तों मैं अपनी बात को मुख्तसर करते हुए ख़त्म करते हुए मैं ये कहना चाहूँगा कि मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सहाबी ही नहीं, मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अज़ीम तरीन सहाबी थे। उनकी खिदमात है, उनसे मोहब्बत ईमान की दलील है और उनसे मोहब्बत ईमान की कसौटी है। मोहब्बत आले बैत के नाम पर जो ये धंधा लोगों ने चला रखा है, इस्लाम से मोहब्बत या आले बैत से मोहब्बत ये नहीं है कि इंसान सीना पीटे, अपने जिस्मों को क्या कर ले, जख्मी कर ले और एक बनावटी मोहब्बत के इजहार में आड़ में तमाम मुसलमानों को क्या कर दे, गालियां दे, फासिक व फाजिल करार दे। ये सीयत का टेक्साल है, एक मुसलमान की समझ नहीं हो सकती। शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह ने इस सिलसिले में बड़ी वजाहत के साथ लिखा है। उन्होंने कहा कि यजीद के बारे में हमेशा आलम इस्लाम में इख्तलाफ रहा है। कहा 3 जमातें हैं और उनमें एक हक पर है। एक जमात तो उन लोगों की है जिन्होंने यजीद को काफिर कहा उनके पास ना किताब से न सुन्नत से कोई दलील मौजूद नहीं है जिसकी बुनियाद पर यजीद को क्या कहा जाए, काफिर कहा जाए। कहा दूसरी वो जमात है जिन्होंने हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु को बागी करार दिया और हुसैन के दफा किया, कहा ये नासिबियों की जमात है। कहा तीसरी जमात अहले सुन्नत वल जमात की है और वो इस वाक़े को अल्लाह की क़ज़ा और क़द्र पर महमूल करते हुए कहते हैं कि एक वाक़या होना था जो हो गया, आलम इस्लाम के लिए जो दुखद था। और यजीद के बारे में वो कहते हैं कि हमें अपनी ज़ुबान को क्या करना चाहिए, खामोशी अपनानी चाहिए। बिला शुबहा नवासे रसूल फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के राज दुलारे अक्का हुसैन का मुकाबला अगर यजीद से किया जाए तो सीरत व किरदार में हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का मुकाबला यजीद कहीं खाल भी नहीं कर सकता। आपका मुकाम बहुत बड़ा, आपके बारे में तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इतनी मोहब्बत थी कि अगर हालत सजदा पीठ पर चढ़ जाए तो अपना सजदा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या कर देते थे, लंबा कर देते थे। यही जज्बा हमारा भी है, लेकिन हम इतना जरूर कहेंगे कि उनको आड़ बना करके बकिया को काफिर गर्दाना जाए।